Good morning, students. Chemical properties of alcohols. The next reaction is oxidation. In this reaction, the oxidation of alcohols involves carbon oxygen double bond formation with the cleavage of already existing OH and carbon hydrogen bonds. Like you have carbon, oxygen and hydrogen bonds here. So in oxidation reaction, there is a cleavage of this much bond and this much bond, okay, and there is a formation of carbon oxygen double bond. This type of cleavage and this type of bond formation occurs in oxidation reactions generally, so we call them as dehydrogenation reactions because we are removing hydrogen from the alcohol, okay. So in this, as there is a removal of hydrogen, so we also call them as dehydrogenation. Dehydrogenation reaction. If we do this reaction with primary alcohols, then what will happen? CH3CHOH H in the presence of any oxidizing agent along with the presence of dilute acid, we are using K2Cr2O7 and H2SO4 diluted, right. So first of all, the ketone is formed, hydrogen from this side and from this side is removed. So ketone is not formed, aldehyde is formed, CH3C H double bond O. Then we do oxidation again. This step is little bit readily, and after this acetic acid is formed, CH3COOH, right. The same reaction we can do with secondary alcohol and then the same with tertiary ones, and every time our product is acetic acid plus byproducts can be formed according to the reactant you have taken, right. Now the next reactions you can do, just try to complete the reactions, like you can go for CH3C CH3OH H, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो we will get CH3 C double bond O CH3 and further इसका ऑक्सीडेशन अगर हम लोग करते हैं तो so we get CH3 C double bond O CH3 COOH plus carbon dioxide plus water. एसिड जो होगा उसमें जनरली आपके पास ये जो एसिड बनेगा इसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं देन द प्रेजेंट इन दिस अल्कोहल, ठीक है. सो इस चीज़ का तुम लोगों ने ध्यान रखना है. Secondly, you can also do the reaction with tertiary ones. For tertiary, we can take CH3 carbon, CH3 OH, CH3. ऑक्सीडेशन करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे तो CH3C CH3 डबल बॉन्ड O. अगेन हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग कंडीशंस देंगे फॉर ऑक्सीडेशन. Then again we get acetic acid CH3COOH, carbon dioxide and water.
नेक्स्ट रिएक्शन इज डिहाइड्रोजनेशन. ये तो हमने ऑक्सीडेशन में करा. नेक्स्ट वी विल यूज अ मेटल फॉर रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल. डिहाइड्रोजनेशन अगर प्राइमरी अल्कोहल के साथ करते हैं CH3COH H then in the presence of copper metal, temperature requirement 573 Kelvin, hydrogen is removed and ethanol is formed. CH3CH plus H2, right? From alcohol we are forming ethanol. The next step you can do is CH3COH CH3, again in the presence of copper, temperature requirement 573 Kelvin. अगेन यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो वी आर लेफ्ट विथ CH3C डबल बॉन्ड O CH3. Here ketone is formed along with the removal of hydrogen molecule. Do remember with primary and secondary alcohols we are getting in one case we are getting aldehyde, in another we are getting ketone, but if we are using tertiary alcohols, in that case the final product is alkene. टर्शियरी वन के साथ जब रिएक्शन करते हैं CH3C CH3CH3OH, कॉपर, टेम्परेचर 573 केल्विन, राइट. हाइड्रोजन एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3 प्लस H2O. Next we are going to start the chemical properties for phenols. In chemical properties for phenols we will study three types of properties. Like first one is reactions of phenolic group. In the reaction of phenolic group, first we will do acidic character. Phenols are weaker acids in nature generally, ठीक है. First of all, तो these are weaker acids, and अगर ये weaker acids हैं तो they turn blue litmus red, and react with all the alkalis and alkali metals so that they can form salts. For example, phenol reacts with sodium to form sodium phenoxide and hydrogen gas is released. Also, phenol reacts with alkali and here water is removed. आपका जो H है इस साइड से रिमूव होगा, OH यहाँ से होगा. So ONA plus H2O. And if we compare phenol with carboxylic acid, means one side पे आप लोग ले रहे हो phenol को, ठीक है. On one side you are having phenol and on the other side you are having carboxylic acid. तो carboxylic acids we know that they are weaker acids, but phenols जो होते हैं ये carboxylic acid से भी weaker acids होते हैं. इसीलिए carboxylic acid
की तरह ये बिल्कुल भी सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शंस नहीं देते। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये Na2CO3 के साथ भी रिएक्शन देता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, इट गिव रिएक्शन विद Na2CO3 और इट गिव रिएक्शन विद NaCHCO3, बट फिनोल जो है इनके साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। नाउ एसिडिक करेक्टर अगर आपको एक्सप्लेन करना है फिनोल का, दैट वाई दे आर एसिडिक इन नेचर, यू कैन ऑल्सो गिव द रीजनिंग दैट देर आर सम पॉइंट्स। द फर्स्ट रीजन इज presence of polar OH bond. तो फर्स्ट रीज़न फॉर द वीकर एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनोल इज इसमें पोलर OH ग्रुप इज प्रेजेंट। द सेकेंड इज कि जो आपका ये बॉन्ड होता है, OH ग्रुप होता है, सॉरी बॉन्ड इज नॉट है, जो आपका OH ग्रुप है इट इज़ अटैच्ड directly to sp2 hybridized carbon, ठीक है जी। बेंजीन का ये जो कार्बन है, यहाँ पे ये दोनों लगे हुए हैं OH, दिस कार्बन इज sp2 hybridized, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है दैट डबल बॉन्डेड कार्बन इज ऑलवेज sp2 hybridized, राइट। सो ये sp2 hybridized कार्बन के साथ अटैच्ड है एंड कार्बन जो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन होता है ये इस बेंजीन रिंग के ऊपर, क्योंकि कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अगर कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 कार्बन ऑफ फिनोल जिसके साथ OH अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर कम हो जाती है, ठीक है। हमारे पास ये फिनोल है, इस कार्बन ने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है इजीली रिलीज कर जाता है, तो इंक्रीजिंग द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, मतलब जैसे वो इस तरफ अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करेक्टर इंक्रीज होता है, उसका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव करेक्टर बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड इसमें क्या होता है, H पॉजिटिव का जो रिलीज होता है एक्वा सोल्यूशन में फ्रॉम फिनोल, इट बिकम्स क्वाइट ईजी एंड आपका जो रिएक्शन रहेगा दैट इज बेंजीन OH, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है जी। सो जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे तो आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, राइट। सो दिस इज द रीज़न वाई फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर, इट इज़ बिकॉज इस कार्बन को OH आपका अटैच्ड है, वो sp2 हाइब्रिडाइज है, एंड sp2 हाइब्रिडाइज जो होते कार्बन हैं आपके पास, उनका नेचर ये रहता है कि दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो जब कार्बन जो है सारा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है OH ग्रुप की, देयर बाय क्या होगा, हमारा जो H का रिलीज होता है फ्रॉम OH बॉन्ड, इट बिकम्स ईजी एंड देयर बाय जब आपका कोई भी सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन में जाता है या सॉल्वेंट को एक्वा सोल्यूशन में डालते ही उसके पास प्रॉपर्टी है कि H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ कर देगा, तो वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। अब वो कितनी ईजिली H पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, एंड वही डिसाइड करेगा कि वो वीक एसिड है या स्ट्रॉन्गर एसिड है, राइट। फर्दर आपको इसमें एक और क्वेश्चन आता है, दैट क्वेश्चन इज फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। हमने पढ़ा है कि अल्कोहल इज अ वीकर एसिड देन वाटर ऑल्सो, बट नाउ आपको एक रीजनिंग करना है विच इज phenols are more acidic than alcohols. Why so? It is because जितना ज़्यादा अब अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को पहले एक्सप्लेन करते हैं,
On the basis of resonance we will explain that why phenols are more acidic than phenols. तो resonating structures में we are having वन टू थ्री फोर एंड H, राइट. अब क्या होगा, ये लोन पेयर जो है इस कार्बन के पास आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो इसको ट्रांसफ़र कर देगा एंड वी विल गेट यहाँ पे क्या आएगा O, राइट, पॉजिटिव बिकॉज इसने डोनेट कर दिए, यहाँ पर नेगेटिव. नाउ ये आपका मूवमेंट करेगा नेक्स्ट कार्बन की तरफ, इन टर्न यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएंगे. सो नाउ 1 2 नाउ अगेन नेक्स्ट ट्रांसफ़र होते हैं ऐसे और इस कार्बन पे जाएंगे. वी विल गेट नेगेटिव एंड OH 1 2 पॉजिटिव, right. So we can mark these structures as 1 2 3 and 4. So the structure from 3 and 4 जो हमारा स्ट्रक्चर है, इन दोनों के पास जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑन दीज थ्री स्ट्रक्चर्स वी आर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप, राइट. सो दिस ग्रुप, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ गया है पॉजिटिव, तो ये ग्रुप क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द OH बॉन्ड स्ट्रांगली टुवर्ड्स इटसेल्फ. जैसे ही अट्रैक्ट करेगा OH बॉन्ड वीक हो जाएगा आपका. ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जैसे ही ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बॉन्ड बिकम्स वीकन एंड H पॉजिटिव आयंस का जो रिलीज होता है वो फैसिलिटेट हो जाता है, राइट. सो देयर बाय H आयंस इजिली रिलीज हो जाते हैं एंड दिस कंसेप्ट इज नॉट प्रेजेंट इन एल्कोहल्स बिकॉज उनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट पॉसिबल, राइट. सो now phenols are acidic in nature. You can explain with the help of resonance by this way, right. You can also explain that similarly for phenoxide ion, कि phenoxide ion is also a resonance stabilized structure. You can do practice for that. Just draw phenoxide ion which is this one, O 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव. तो आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करोगे, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो ये आयंस आपका क्या करेगा, फिनोल से भी ज़्यादा अगर आप इसकी करते हो, लाइक यू व्हेन यू आर डूइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर दिस मॉलिक्यूल, आपको क्या मिलेगा कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है फिर से वो रोटेट करता है, बट अब वो क्या करेगा, 4 स्ट्रक्चर्स पे एट अ टाइम वो एग्जिस्ट करेगा. तो जैसे आप करोगे, तो अगर स्टेबिलिटी रीजंस हम चेक करेंगे रेजोनेंस के, तो फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है एज़ कम्पेयर टू फिनोल. फिनोल में हमारे पास 2 3 4 स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव चार्ज आया था और नेगेटिव चार्ज आया था, ठीक है. तो देयरफॉर दीज विल बी अनस्टेबल. इनको और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, इन स्ट्रक्चर्स को और एनर्जी चाहिए कि अपना जो सेपरेट है चार्जेस उनको और सेपरेट कर सकें, ठीक है. तो बट अगर हम फिनॉक्साइड आयन की बात करेंगे, तो फिनॉक्साइड आयन में जब आप देखोगे बेटा, वहाँ पे चार्ज सेपरेशन कोई नहीं है. मैं आपको करके बता भी देती हूँ. यहाँ पे तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन करा, जो थोड़ा सा अनस्टेबल आ गया हमारे पास. बट अगर फिनॉक्साइड आयन की आप बात करो, तो फिनॉक्साइड आयन में यू कैन सी हियर कि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज तो है उसके ऊपर. जब आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाते हो, एट दैट टाइम उसका चार्ज जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है. जब चार्ज आपका स्टेबलाइज हो जाएगा तो पॉजिटिव नहीं आएगा भी यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव ऑलरेडी था, देने के बाद वो सेटिस्फाई हो गया. तब सिर्फ आपका नेगेटिव चार्ज ही रोटेट कर रहा है ऑल ओवर द रिंग. तो फॉर दैट रीजन फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनोल, ठीक है. तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कमेंट ऑन द फैक्ट दैट फिनॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एज कम्पेयर टू फिनोल, तो यू कैन गिव दिस रीजन ऑल्सो.
ठीक है जी। देन अगेन ये शिफ्ट करेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे जाएगा एंड यू विल गेट 1 2 3 4 राइट। ये चीज़ हो गई। फिर ये वापस से अपनी पोजीशन पे पहुँच जाएगा एंड वी विल गेट फिनोल, बट नाउ देयर आर alternate bonds present 1 2 3 4 5 6 and negative charge, right? So the similar comparisons you can do with other examples also. You can take nitrophenol, you can compare nitrophenol with phenol, okay? वो भी आपका इसी का रीज़न होता है। बेसिकली कौन एसिडिक ज़्यादा है कौन कम है वो डिसाइड करता है कि रिंग में प्रेजेंस किस चीज़ की होती है। अगर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे सपोज कर लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा, एच रिलीज हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया जो उसको इलेक्ट्रॉन्स दे ही जा रहा है, तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं कम हो रहा तो बॉन्ड को ब्रेक करना क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन्स में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसका पीडीएफ एक आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। आफ्टर दिस लेक्चर यू कैन फाइंड दैट ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट रिएक्शन इज एक्शन विद जिंक डस्ट। फिनोल plus zinc, on heating we will get benzene plus ZNO. The next reaction is action with ammonia. Phenol plus ammonia in the presence of anhydrous zinc chloride, temperature requirement 673 Kelvin. Aniline is formed and water as a byproduct is formed. H from this side, OH from this side, NH2 बचेगा, वो अटैच हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। So we are left with another one part for this chemical properties. Then we will do some conversions and test